Hello, good morning students. Today we just go ahead in lesson number 10. You know, since last two lectures we studying lesson number 10 circle. On first day very basic terms and exercise 10.1 which is related to basic concept we solve. On second day various concept, various theorems and summary point we discussed, and you written in homework also in a fair book. Okay, now if we think about going ahead, then first of all exercise 10.2 and 10.3 are cancelled. Okay, 10.2 and 10.3 are cancelled, so not to go through that. Now in exercise 10.4 there are three sums 1, 5, 6, and again in exercise 10.5 again 1, 2, 3 sums, first three, remaining 1, 2, 3, 6, 8. Okay, so these are the remaining sums. Now, so 3 sums from 10.4 and 3 sums from 10.5. Only 1, 2, 3 from 10.5. Okay. So now two exercises only we are having 10.4 and 10.5. First of all, we solve 10.5, not 10.4. You can write in your fair book first 10.5 also, no problem. Okay, no need to keep blank pages. Okay. So मतलब ऐसे आप लिख सकते हो, पहले 10.5 बाद में 10.4, नो प्रॉब्लम. तो अभी तक जो बेसिक हमने कल के लेक्चर में देखा था ना, एंगल्स के रिलेटेड प्रॉपर्टी सारी, वो यहाँ यूज हो रही है. ओके, तो अभी आप फर्स्ट सम देखो 10.5 का. सो एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 1. ओके, 10.5 1. Figure is given there, description also there. ABC are 3 points on a circle with center O such that BOC equal to 30 degree. You can see that BOC. Okay. And AOB, BOC, AOB is 60. Means it is very clear in figure. If D is the point on the circle other than the arc, other than arc means on remaining part, not on ABC. ABC is a one arc. So on remaining part, D is the any point. Then find ADC. So we have to find ADC. Okay. If figure is not given, then also you can draw figure also, because description or data is enough. Everything is clear. Okay. But here it is given, so no problem. I also drawing here that figure. O is the center, D is anywhere here. Okay, and ABC are just like that, anywhere here. A, B, C. Okay, now D, C, and E are joined with O. Okay, and this required ADC, so we require this one. Now it is very basic. If you know, if you remember about previous lecture, at that time we told you in a same segment by any arc or any chord, angles made at center is double of the angle made at remaining part of the circle. Otherwise, angle made at remaining part is half of the angle made at center. Okay, so if you see here ABC, if you consider ABC as a one arc, ABC as a one arc. Okay, so this is our one main arc. Okay, it makes AOC at center and ADC at remaining part. Remaining part means not on arc but at remaining part.
So obviously there is a relation between this. This is half of whole angle AOC, not 60, not 30, but whole. Whole means 60 plus the 90. So obviously orally you can say it will be 45. Why? AOC is 90. So it will be 45. But with some reason you have to write. Okay. So write down statement. Okay. If you turn your page on 187 in your textbook, okay, make sure that your textbook must be open. Okay, so on summary point, page number 187, just look there. I am just giving you number 11, sorry. Point number 11 on summary, you written in textbook also. The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. ओके एंड ये लोगों ने थ्योरम में दिया गया है, थ्योरम 10.8. ओके, तो आपको और ज्यादा क्लियर करना है तो थ्योरम 10.8 ऐसा भी लिख सकते हैं, बिकॉज एक नंबर याद रखिए, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.8 स्टेटमेंट नहीं याद रखना तो नंबर याद रखो, इसका एड्रेस बता दो, ये जगह लिखा है. ओके, 10.8 में ये बात है. आई कैन से angle AOD which is required is half of angle AOC. This is the relation. Okay, give it number 1 because so far AOC is not ready, AOC not given. Okay, तो पहले हम क्या करेंगे, ये हमने बात मेन बात तो लिख दी, लेकिन AOC सीधा नहीं किया है तो AOC 90 क्यों बन रहा है वो भी देख लो. एंगल AOC इक्वल टू एंगल AOC किस किस का सम है, दोनों गिवन एंगल का नेम पे दिया है AOD DOC. ओके, इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 60 प्लस 39. बहुत बात सिंपल है लेकिन हम थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं. ओके, बस अभी 90 भाग, सो देयरफॉर एंगल AOD फिर से लिख दो है, या तो इसको यहां उठा लो, ये जो ऊपर लिखा है ना इसको यहां ले लो, तो आप नंबर 1 पे नहीं लिखना पड़ेगा. ओके, बाय थ्योरम 10.8 मैंने अभी बोला था वो नंबर आपको याद रखना है. एंगल AOC, सॉरी हम पहले AOD बोलते, AOD इज हाफ ऑफ AOC. ओके, अगर AOC फाइंड करना होता तो AOD से डबल होता, लेकिन ये फिर इससे हाफ है, सो इज इक्वल टू हाफ इंटू 90. बस बात खत्म, 45 हमारा आंसर. ओके, तो बहुत सिंपल है, जस्ट एक थ्योरम जो हमने आगे समझा है इसका यूज. ओके, ऊपर का कुछ लिखने की जरूरत मैंने यहाँ ही लिख दिया डायरेक्ट. ओके, तो दोबारा इसको लिखना पड़ेगा नहीं, पहले हमने इन दोनों मिला दिया और इसका पूरे का हाफ AOC. ओके, बाद में B को भूल जाओ पहले. ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड एंड इफ यू वांट टेक स्क्रीनशॉट आल्सो. और इसके बाद नंबर 2 समझने की ट्राई करो. अ कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. कोड एंड रेडियस आर इक्वल. कोड क्या होते हो तो पता है ना, ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर है, मतलब सर्कल के कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का लाइन सेगमेंट, इसको बोलते हैं कोड. फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट पॉइंट ऑन द मेजर आर्क. ये फिगर इसकी नहीं है, फिगर 3rd नंबर की, तो फिगर इसकी हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी. अब ये 1st नंबर वाला क्वेश्चन में रिमूव कर रहा हूं. ओके, बहुत सिंपल है, ये दोनों मिलकर 90 बन रहा है, इससे ये हाफ है, क्यों है 10.8 थ्योरम के हिसाब से. अभी नंबर 2, फेवरेट सर्कल तो आपको ड्रॉ करना है, और सर्कल ड्रॉ करने के लिए आप कोई
और कोई सर्कुलर थिंग जैसे बैंगल, इसका भी यूज कर सकते हो। तो यहां इसने ऐसा बोला है कि एक कोड ऐसी है जो रेडियस जितनी है। तो मान लो कि मैं कोड ऐसे ड्रॉ करूं, ट्राई भी करोगे इक्वल लगे, इससे कोई जरूर नहीं है, तो हमारी रफ फिगर है। ओके, तो ये तीनों इक्वल है, ये और ये, क्योंकि रेडियस तो अपन में आपस में इक्वल होती है, लेकिन कोड भी इक्वल है ऐसा इसने दिया है। हम हमारे हिसाब से नेम भी दे दें। ओके, ये भी कोड का नेम दिया, सेंटर को तो मोस्टली हम वो नेम देते हैं। अभी वो क्या मांग रहे थे, फाइंड द एंगल सबटेंड बाय द कोड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो आपको एंगल फाइंड करना है एक मेजर आर्क पर, यहां मेजर आर्क का कोई भी कहीं पर भी पॉइंट ले लो, एनीवेयर दे आर इक्वल। सपोज आई एम टेकिंग हियर, सपोज इसको हम बोल दे P, और एक माइनर आर्क पर भी ले लो कहीं पर, सपोज दैट इज Q। ओके, अंडरस्टूड। तो ये बात कर रहे हैं, इसने पहले तो ऐसा बोला कि कोड है वो रेडियस जितनी है, और आपको क्या करना है, तो आपको एक वो ही कोड एक माइनर आर्क पर और मेजर आर्क पर कौन सा एंगल बना रहे, कितना एंगल बना रहे, वो आपको फाइंड करना है। ओके, तो बस कुछ बात नहीं है। देखो, आप पहले तो ये बोलोगे कि सर यहाँ कहीं पर एक भी एंगल नहीं है, तो कैसे आगे बढ़ेंगे, कहीं पर मेजरमेंट ही नहीं है, कोई पूरे क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। एक मेजरमेंट तो होना चाहिए, लेकिन है क्यों? देखो, दोनों तो पहले आपस में थे, ये भी तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ओके, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो हमें पता है सारे एंगल 60-60-60 होते हैं। सो 60-60 होते हैं, हमें ये भी का कोई काम नहीं है, हमें यहाँ का एंगल अगर 60 मिल जाए तो सम नंबर 1 के हिसाब से ये इसका हाफ होगा, तो ये 30 मिल जाएगा, तो एक एंगल तो मिल गया, क्यों ये 60 इनडायरेक्टली दिया गया है, ये 30 मिल गया। बाद में ये PAQB वो को मत देखो, ट्रायंगल को भी मत देखो, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, हमने सारी बात डिस्कस की थी अगले प्रीवियस लेक्चर में। तो ये प्लस ये 180 होता है, तो क्यूबी मिल जाएगा 150। ओके, तो ये हमारा पूरा ट्रैक है। ओके, तो पहले वो है नहीं, लेकिन मान लो है, तो इसके पर से ये मिला और इसके पर से क्यू मिलेगा, सीधा क्यों नहीं मिलेगा, पी जब तक नहीं मिलेगा तब तक क्यों नहीं मिलेगा। ओके, क्यू को ओ के साथ कोई रिलेशन नहीं है, क्यू को पी को ओ के साथ रिलेशन है और क्यू को पी के साथ, तो ऐसे वाया वाया में क्यू भी मिल जाएगा। ओके, तो पहले लिखो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बना, और हम सपोज भी कर ले। ओके, सपोज भी कर ले, थोड़ा एक तो हमें स्टेप में तो लिखना पड़ेगा ना। सपोज इन अ सर्कल विद सेंटर O, AB is 4, AB is a 4, AB 4 है, और P and Q are points, P and Q are points, कहाँ है, ऑन, P कहाँ है, मेजर आर्क, तो पहले मेजर आर्क लिखो, ऑन मेजर आर्क एंड माइनर आर्क रिस्पेक्टिव। आप बोले सर क्यों ऐसा आप डिस्क्राइब कर रहे हो, तो एक्चुअली फिगर के बाद अगर ये लोगों ने कोई नेम नहीं दिया गया ना, नेम हमारा खुद का सपोज किया है, तो डिस्क्राइब सपोज करना पड़ेगा। ओके, तो सपोज करने के बाद ही आपको पता होगा, अंडरस्टूड। तो ये हमें लिखना पड़ता है, बस अभी लिख दो, ट्रायंगल OAB is equilateral, therefore can I say angle AOB equal to 90 plus 60 क्यों, हमें पता है
इक्विलेटरल पे सारे एंगल 60 का होते हैं, लेकिन हम यहाँ इंटरेस्टेड हैं, इसका कोई काम नहीं है, लिखो तो गलत भी नहीं। ओके, अभी ये बी मिलेगा कैसे? बाय थ्योरम 10.8, थ्योरम 10.8 एंगल एपीबी आगे के सम की तरफ बिल्कुल हाफ ऑफ एंगल एओबी इक्वल टू हाफ ऑफ 60 इक्वल टू 30। ओके, बस अभी ये मिला तो ये भी मिलेगा। ओके, क्यों? क्योंकि एपीबी प्लस एपीबी 180। सो लिखो, ये हमारा फर्स्ट आंसर है, थोड़ा मार्क भी कर लो, सारे साइड में ऐसे लिखो ना, ऐसे दोनों साइड आगे बढ़ते तो देयरफॉर की साइन करके दोनों साइड आगे लिखना। अभी लिखो, ये हमारा और एक स्टेप बनेगा, एंगल एपीबी प्लस एंगल एक्यूबी इज इक्वल टू 180। क्यों? लिखो quadrilateral PAQP is cyclic quadrilateral, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको पता है ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मींस सम 180। ओके, तो P पर से अभी Q मिलने वाला है, कैसे? P की वैल्यू रखते 30। बस अभी सॉल्व करो, इसको सामने भेज दो। देयरफॉर एंगल AQB इज इक्वल टू 180 माइनस 30। देयरफॉर एंगल AQB इक्वल टू 150। तो मिल गया दोनों एंगल माइनर आर्क पर बनाया हुआ एंड मेजर आर्क पर। ऊपर हमने क्लियर किया भी है। ओके, कैसे क्लियर किया है कि एपीबी क्या है, एक्यूबी क्या है, फिगर में भी क्लियर है। ओके, सो एवरीथिंग इज क्लियर। सो अभी पहले तो फिगर ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। फिगर में ऐसे बोला कि एक कोण है जो रेडियस जितनी है, तो रेडियस भी बना दी, कोण भी, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो एंगल 60 बन गया। इसने बोला एक माइनर आर्क पर और एक मेजर आर्क पर एंगल कितना बनता है वो फाइंड करो। कहीं पर भी रख सकते हो, पी एनीवेयर फ्रॉम हियर टू हियर, क्यू भी यहाँ कहीं पर भी हो, वो इक्वल आ जाएगा। तो पहले तो 10.8 के हिसाब से इसका हाफ ये 30 लेके आए, बाद में ये P प्लस Q 180 होगा। क्यों? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या? जिसके सारे वर्टाइसिस सर्कल पर है, तो PAQB सारे 4 के 4 वर्टाइसिस सर्कल पर है, और ये दोनों ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट है तो सप्लीमेंट्री होती है। इसके हिसाब से 30 के सामने कितना मिल गया? 150। इट इज वेरी सिंपल। ओके, अगर आपको ये लिखना नहीं आता तो थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लो। मैंने जो डिस्क्राइब किया है 1 2 3 4 लाइन, वो एक्चुअली फिगर को डिस्क्राइब करना है, थोड़ा होना चाहिए। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा होना चाहिए। 2 मार्क्स में आप सीधा यहाँ से स्टार्ट करो, नो प्रॉब्लम। ओके, क्योंकि फिगर में सब क्लियर है। हाँ, अभी नेक्स्ट वहां फिगर दी गई है, थर्ड क्वेश्चन देखो। PQR 100, PQR पॉइंट होता सब लोग तो दिखाई दे रहा है। सेंटर फाइंड OPR, हमें OPR फाइंड करना है। OPR देखते हैं, पहले फिगर को ड्रॉ करें। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके लिखना है तो लिख लो। ओके, ओके, अभी मैं रिमूव कर रहा हूं इसको। ये 2 नंबर था, अभी मैं करने वाला हूं नंबर 3 में फिगर है, वो मैं ड्रॉ करूंगा और इसमें कर दूंगा। इसने कहीं पर P यहां रखा है। ओके, और वो यहां है सेंटर में, इसके ऊपर एक ऐसी लाइन जो कोण है, ये भी क्या है? PR क्या है? कोण। PR और Q इज हियर और दैट इज O। ओके, और ये यहां एक सर्कल, और ये इसने 100 दिया। क्या मांगा गया वो भी यहां क्वेश्चन मार्क कर दो।
तो क्लियर होगा OPR, OPR मतलब ये OPR कैसे फाइंड करेंगे वो भी थोड़ा देखें। पहले तो देखो यहां से कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि हम यहां या यहां आ सकते, थोड़ा आपको थिंकिंग करना पड़ेगा। ओके, तो देखो अगर Q यहां है 100 तो हम सामने एक पॉइंट ले ले, ये साइड एक पॉइंट ले ले, मान लो कि S, तो ये 100 के सामने सप्लीमेंट्री 80 होगा, ये 80 के हिसाब से ये इसका डबल होगा। ओके, यहां से हो, इसको और इसको कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि वो एक सेगमेंट में दूसरे सेगमेंट में, ये PR के नीचे है वो ऊपर है, तो PR के नीचे एक यहां पॉइंट ले ले तो इसका 100 के सामने 80 मिलेगा और 80 में से 160 मिलेगा, बाद में ये मिलेगा। ओके, तो हम एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, तो ये हमारा एक ही सपोजिशन है यहां। यस, ओके, तो लिखो सपोज पॉइंट X इज ऑन मेजर आर्क। मेजर आर्क है ना, क्योंकि PR है ना, ये साइड स्मॉलर आर्क है, ये बिगर है, मेजर आर्क कहीं पर भी ले सकते हो, यहां से लेकर यहां तक। तो हमें आगे समझ नहीं आता Q एंड S सप्लीमेंट्री होते हैं, तो लिख दो देयरफॉर एंगल PQR प्लस एंगल PSR, ये वो ये पूरा नेम लिखना, ओनली Q एंड S नहीं लिखना, 3 लेटर्स से बना हुआ एंगल का पूरा नेम लिखना, इज इक्वल टू 180। Q लिख दो रीजन कि कौन सा लिखेंगे, PQRS is cyclic quadrilateral। ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बस ये 100 है। वैसे तो ओरल ही हो रहा है लेकिन हमें यहाँ पूरा बताना पड़ेगा, कभी कभी बहुत शॉर्ट और सिंपल होता है लेकिन थोड़ा लिखना तो पड़ेगा ना। therefore PSR is equal to 180 minus 100, therefore PSR equal to, ये मांगा नहीं गया है लेकिन हमें यहां मिलेगा तो ये मिलेगा, ये मिलेगा तो ये दोनों मिलेंगे। ओके, ऐसी बात। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। अभी अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.8 इसका डबल होगा क्योंकि सेंटर वाला डबल होता है, तो लिखो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.8 क्या मैं लिख सकता हूं कि POR इज डबल ऑफ एंगल PSR। यहां देखना हो सेंटर वाला एंगल लिख रहे हो तो डबल, सेंटर पर से ये लाना होता तो हाफ लिख देते, आगे में हाफ लिख रहे। सो इज इक्वल टू 2 into 80, सो 160 POR 160 हमें मिला। तो यहां हम आ गए, ये 80 मिला, ये फाइंड किया, दिया नहीं दिया, ये 160 मिला। अभी ये मिलेगा, क्यों मिलेगा, ठीक से समझना, क्योंकि एक एंगल है तो बाकी कहां से मिलेगा, दोनों। लेकिन हमें पता है, देखो ये जो ट्रायंगल है ना OPR, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि दो रेडियस है OP एंड OR, रेडियस तो इक्वली होती है। सो दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस है इसलिए ये पर से दोनों मिलेगा, वरना एक एंगल पर से दो नहीं मिलता, दो है तो एक रिमेनिंग मिलता है। ओके, तो अभी हम बात कर रहे हैं ये ट्रायंगल की। सो लिखो ट्रायंगल OPR इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों आइसोसेलेस है फिर से मैं बता रहा हूं, रीजन भी यहां लिखूंगा। ये हमारा थर्ड स्टेप है, ये हमारा पहला स्टेप था, ये हमारा दूसरा स्टेप था, यहां से थर्ड स्टेप स्टार्ट हो रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों है, तो रीजन में लिखो OP equal to OR। okay, they are radius, OP and OR are radius, ये तो रेडियाई प्लूरल फॉर्म। ओके, they are radius। तो कोई बात नहीं, अगर दो साइड इक्वल है तो सामने वाले दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ऑब्वियस है, सामने वाले दोनों एंगल इक्वल ही होते हैं। इन अ ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन ऑपोजिट टू एंगल्स आल्सो इक्वल। ओके, तो ये और ये इक्वल है, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं, देयरफॉर एंगल OPR इक्वल टू एंगल ORP इक्वल टू x लिख दो।
तो यहां और वहां x भी तो ही मिलेगा। ओके, तो क्या होगा, therefore x plus 160 is equal to 180, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट हमने यूज किया गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होगी, वो हमने सपोज किया x। ओके, तो यहाँ लेट लिखो, लेट मतलब सपोज, बस तो मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू, इसको सामने दे दो 20, 160 सामने तो x इक्वल टू 10। x मतलब क्या, OPR, इसने जो माना है तो therefore एंगल OPR इक्वल टू 10 डिग्री, ये हमारा फाइनल आंसर, इसको हाईलाइट कर दो। ओके, सो अगेन आई एक्सप्लेनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिगर इतनी थी, मैंने आगे एस इसलिए लिखा कि Q पर से S मिलना चाहिए, इसके पर से वो मिलेगा और बाद में ये मिलेगा। ये पहले तो रास्ता क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसको और इसको कोई रिलेशन नहीं है, Q को और O को भी कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि सामने सेगमेंट में है तो 10.8 अप्लाई नहीं होगा। 10.8 तो ही अप्लाई होता है कि सेम सेगमेंट में एंगल है, एक सेंटर पर और एक सर्कल पर, वो अप्लाई होता है। तो हमें पहले यहां आए तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से वो 80 मिल गया। इसके बाद अभी ये दोनों के बीच में रिलेशन है, क्योंकि वो दोनों एक ही सेगमेंट है PR के, तो सेंटर पर और सर्कल पर बना हुआ एंगल का जो रिलेशन है डबल हाफ का, तो इसके हिसाब से हमें ये 80% डबल 160, ये 160 पर से आइसोसेलेस ट्राइंगल होने की वजह से हमें ये मिला। ओके, कैसे मिला, तो ये दोनों इक्वल है तो दोनों की जगह x सपोज कर लो। ओके, दो इक्वल होता है तो एक सिंपल लेटर सपोज कर लो बस, तो तीनों का सम 180, तो हमने इक्वेशन सॉल्व किया तो x 10 मिला। x मतलब कोई कुछ नहीं, जो मांगा गया है वो OPR। ओके स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट 3 सम ऑफ 10.5, बाकी सारे कैंसिल किए गए ये एक्सरसाइज में थे, बाकी सारे कैंसिल किए। ओके, अभी हम 10.4 के सम अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट है, लंबा भी है। ओके, इसलिए मैंने पहले 10.5 किया, अब भी इतना ही करोगे अभी। ओके, अभी आपको वही सम होमवर्क में करना है जो मैंने तीनों करवाया, लेकिन थोड़ा चेंज कर दिया। तो पहले तो चेंज क्या करना है वो देख लो, ये अभी मैं रिमूव कर रहा हूं। ओके, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, टेक राइट नाउ, अदरवाइज पॉज इट एंड राइट। ओके, आपको फिर से वही सम दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन नया मेजरमेंट के साथ। मैं सारे मेजरमेंट चेंज करवा रहा हूं और बाद में आपको फिर से होमवर्क करना, मेथड वही रहेगी, स्टेप भी यही है। हाँ, तो क्वेश्चन 1, ओके, मैं करेक्शन करवा रहा हूं इसमें, तो इसमें BOC जो 30 है वहां लिख दो 50, और एंगल AOB जो 60 है वहां लिख दो OP 60। ओके, थोड़ा मैं करेक्शन करवा रहा हूं, यहाँ 35 लिखो और यहाँ 45। ओके, तो ये इसके करेक्शन के हिसाब से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में